lecture. So, class, we were left with the passive voice of imperative sentences. Uh, this specific topic is something which is least important related to your own exams point of view. इसमें कोई आपका पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, बट लाइक स्टिल यू शुड नो अबाउट कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, सॉरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का कोई आपका सेंटेंस आता है, सो उसको आप हाउ यू वुड बी चेंजिंग इट इनटू अ पैसिव वॉइस बेसिकली. So anybody from your side who can tell me that what is meant by an optative sentence? Hurry up. Okay, go to Huzaima. Which in which we wish, ठीक है. In which we pray, in which we hope, ठीक है. वो तमाम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लास या आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आ सकते हैं, या आप नोट डाउन कर लें. All those types of sentences which basically talk about wishes, which basically talk about, desires, which basically talk about prayers, they are called as optative type of sentences. So now today we would be going to discuss basically कि अगर if there is any type of optative type of sentence, so how you would be changing the passive voice of the given optative sentence. For example, Walaikum Assalam. So who is going to take the screenshot, please? Either I would be checking the assignments by my own self because I need to go through the creative writings of you people so you can submit after classes. Class, for example, if the sentence is May God bless you. So why this is an optative sentence? Any answer? Aisha, yes. Okay. Aisha, please go for the screenshots. ठीक है? Because it is something that is representing prayer. ठीक है? So that become the example of an optative sentence. Now हम इसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? बहुत ही इजी क्लास. फॉर एग्जाम्पल इट वुड बिकम मे यू बी ब्लेस्ड. यहां तक भी इट इज ओके. अगर आप लोग इसके साथ बाय अल्लाह की यूसेज करते हैं, सो दैट इज आल्सो ओके. ठीक है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज मे गॉड हेल्प द पुअर. सो व्हाट वुड बी इट्स पैसिव वॉइस? मे द पुअर बी helped by God. सिंपल. ठीक है. गॉड भी हो सकते हैं सेंटेंस में, आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम, सो यू कैन राइट इट लाइक दैट. क्लास गॉट इट? Okay, the next sentence is for you people. Let me know the check. Okay, yes, I'm going for that. Class, the next sentence is May God protect us. May God protect us. Yes, so it would become Huzaima, not incorrect. May God protect us. us को किस में चेंज करेंगे क्लास? us को तो आप लोगों ने yes we में चेंज करेंगे. May we be protected by God. Got it? Walaikum assalam, Hamdan. Alhamdulillah. How are you doing? Okay, class. The next sentence is May the teacher reward the students.
May the teacher reward the students. May the students be rewarded by the teacher. Okay. Be rewarded by the teacher. Okay. Next sentence is may Allah forgive him. May Allah forgive him. Husama, write the first letter of Allah capital. Sabiha. May he be की यूसेज करेंगे क्लास. May he be forgiven by Allah. ठीक है. वुड हलीमा, वुड की यूसेज हम नहीं करेंगे. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज okay class, these were the sentences related to optative sentences. I hope you got the idea. Class, किसी को like if any person has any question, please let me know. Otherwise, we are moving towards punctuations. Class, any question please related to the passive voice of optative sentences? Yes, we in batch one we had done. अभी नहीं किए. Okay. Class, now come towards punctuations. I hope you people would have taken the screenshot. तो क्लास पंचुएशन रूल्स तो हम बहुत करते हैं. लाइक आपका पेपर में क्वेश्चन भी आता है. समटाइम्स आपको प्रैक्टिस कराई जाती है. समटाइम्स आपको नहीं कराई जाती. ठीक है. कुछ दो तीन पैराग्राफ्स आपको दे दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एंड देन दे make you understand about different rules of punctuations basically. So first of all, we know that we have different punctuation marks basically, in which a period is included. ठीक है, which we use commonly in our daily life. ठीक है, comma is included, a question mark is included. But the question is कि what do you mean by punctuation marks? Punctuations basically कहते किसे हैं? Why we use them in a language basically? क्लास पंचुएशंस रूल्स तो हमें पता होते हैं. ठीक है, हमें ये भी पता होते हैं कि जी पंचुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं. बट यू शुड नो अबाउट द yes about the purpose of using punctuations basically. कि what's its purpose? So the most important purpose of punctuation is that in order to bring clarity in your sentences. So, we would be going through two sentences class, and I would be letting you know about the purpose of punctuations basically. Just suppose class, if I say that I like green, red, and white color. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम रियान, आई एम गुड. व्हाट अबाउट यू? सो क्लास, नाउ देखें, हमें तो पता है कि जी ग्रीन और रेड में समथिंग इज मिसिंग. वी नो दैट. ठीक है, वी नो दैट. But like just suppose if there is a person who does not know about punctuation marks, who does not know where to use a full stop, who does not know where to use a comma, so उसने green red को एक ही चीज कंसिडर करना है. उसने ये नहीं कहना कि green is something separate and red is something separate. He or she would be considering these two colors as one, because we are not using any type of
comma over here or any type of punctuation mark over here. So in order to bring a clarity basically in these two types of nouns, कि जी green आपका separate color है and red is something that is separate as compared to green. ठीक है? So और ये आसान अल्फाज में these two are different things. इनके दरमियान we would be using a comma in order to make them more clear and crystal. So this is the purpose of punctuation marks. ठीक है? एक और एग्जांपल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि students are playing in the ground, they are making a noise. We know that we are basically using two types of sentences over here. हम दो sentences की usage कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन अगर we haven't used any full stop or any period over here, so हमें ऐसा लगेगा कि ये पूरा sentence एक ही simple sentence है. हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे हैं ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स पे तो ये एक ही सेंटेंस हुआ, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी फुल स्टॉप और एनी पीरियड ओवर हियर. इतना बड़ा सेंटेंस समझ ही नहीं आ रही. ये दे जो है वो ग्राउंड की बात हो रही है, स्टूडेंट सम और पता तो है, बट in order to make to bring a clarity in this sentence we would be using a full stop. So this is the very purpose of using punctuation marks over here or in the language or in any type of specific language. ठीक है? Okay, class, now coming towards the usage of first punctuation mark for today. The first one is full stop. Full stop is also called as a period and it is indicated as like this, that you people know. Okay, so if I ask you people that where we use full stop, so what you people would be giving me the answer? कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं? Being completed. So the first usage of full stop is class. It is used in order to end a declarative sentence. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स कि आपका पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के एंड पे बेसिकली हम यूज करते हैं फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, सन rises in the east, full stop. Sun does not rise in the east, full stop. So these sentences are called as declarative sentences and we use in order to end these type of sentences. हाँ जी, next usage of full stop. After abbreviations भी class हम use करते हैं. For example, after ठीक है, mostly in the names of like in British names. For example, हम कहते हैं ना डॉक्टर अली is our teacher. ठीक है, Mr. Khan lives here. So after the basically mentioning British names, डॉक्टर या मिस्टर जो हम प्रोफेशंस वगैरह मेंशन करते हैं, उनके बाद भी we use abbreviations. Sorry, we use full stop. Period. ठीक है? So this is basically the first two usages of a full stop, also considered as a period as well. Class, examples from your side. And I would also be choosing the bright mind of today.
Uh, while going through the participation, only one student would be chosen. She is walking in the park. Okay, okay, first sentence. Next, hurry up, class. She is doing her work. फातिमा, इसमें तो आपने CPU पर तो हम गए नहीं अभी, हुजैमा. They are playing Mr. Ali is late today. Okay. अबीहा, हुजैमा. ठीक है, वो भी मैं नेक्स्ट बता रही हूँ. Ahmed is eating food. She was okay. He has done something. Sabiha, Mr. Usman is my uncle. I'm playing chess with my brother to maintain discipline. Okay. And what about abbreviations? Okay, Rihan, good. Class, by the way, on a lighter note, I have heard that you people are facing some problems in my subject. कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्लास? प्लीज डिस्कस इट विद मी. किस चीज की आपको समझ नहीं आती? आयशा फातिमा, ओके. कौन से सेंटेंसेस आयशा? देखिए, टेंसेस का मैंने आपको एक ही सॉल्यूशन बताया था कि टेंसेस आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्लास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई नो कि आप लोगों को टेंसेस कहीं भी इतने डिटेल में नहीं कराए जाते जितना मैंने आपको कराया. इट्स नॉट दैट लाइक आई एम प्रेजिंग माई सेल्फ. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको टेंसेस 3 वीक्स में आ जाएंगे. मैंने आपको कहा था कि अगर कोई बच्चा टेंसेस में वीक है तो वो ही आर शी शुड टेक्स्ट मी पर्सनली. बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी टेक्स्ट फ्रॉम योर साइड. हम टेंसेस पर काम करें, हम एक्सरसाइजेस को देखें, प्रैक्टिस करें. उसके बाद कहीं जाके डिफिकल्ट से कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस भी आपको समझ आएगा. ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में, देखिए, अब आपको पता है ना कि आप लोग टेंसेस में वीक हैं, आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में वीक हैं. सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, बीइंग योर टीचर. इट्स नॉट दैट मैं क्लासेस लेके बस अल्लाह हाफिज. बट एटलीस्ट आप लोग भी आए, आप लोग भी मुझे टेक्स्ट करेंगे, मैम यहाँ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वी नीड टू सॉल्व इट. बट आई हैवंट रिसीव्ड एनी टेक्स्ट फ्रॉम योर साइड. ठीक है, सो आज आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट करना है और आपने अपना प्रॉब्लम भी बताना है कि वी आर लेकिंग हियर ओवर हियर. अब मैंने आपको क्रिएटिव राइटिंग की असाइनमेंट दी थी, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड इट येट. सो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल एट योर पार्ट एज वेल. ठीक है. ओके ओके क्लास. सो उसके बाद हम जो फुल स्टॉप का एक और यूसेज है वो ये है कि हम फुल इनिशियल्स के बाद भी बेसिकली फुल स्टॉप की यूसेज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फुल इनिशियल्स मीन्स के मोहम्मद अली जिन्ना was a great leader. ठीक है. या एच जी वेल्स wrote many novels. ठीक है. सो इनके दरमियान में इनिशियल्स, जो फुल फुल इनिशियल्स होते हैं क्लास, यहाँ भी हम बेसिकली फुल स्टॉप की यूसेज करते हैं. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द यूसेजेस ऑफ यूजिंग अ पीरियड. यस, एक्सेट्रा. यस, पोज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. यस, ठीक है. सो क्लास, गॉट इट, द यूसेज ऑफ फुल स्टॉप और पीरियड.
गुड गुड हैदर एंड हलीमा। अच्छा जी क्लास, नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं जी कॉमा की यूसेज। सो एनी आइडिया दैट वेयर वी यूज अ कॉमा? कॉमा की यूसेज आप लोग अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट फर्स्ट यूसेज इसकी क्लास ये है कि बेसिकली इट इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट आई बॉट एप्पल्स, lemons एंड बुक्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास आसान अल्फाज में एक लिस्ट है ऑफ डिफरेंट नाउन्स, ये आपके पास नाउन है, ये भी नाउन है, और एंड से पहले तो ऑफ कोर्स हम कॉमा की यूसेज नहीं करते। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए वी यूज अ कॉमा ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर द इंट्रोडक्टरी, पहले आप लोग सुने, देन आई वुड बी कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी टाइप्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस जो होते हैं क्लास, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यस, आई एग्री विद यू, ठीक है। आपके क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, वन वर्ड जो आंसर होता है इसमें आपने यस और नो को बताना होता है, ठीक है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इनको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस और वर्ड्स। इनके आफ्टर भी बेसिकली आप लोगों ने कॉमा की यूसेज करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज क्लास जो कॉमा की है वो है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये आपका पेपर में मस्ट आता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? अभी हमने किए तो नहीं है बट स्टिल, नहीं आयशा, वो हम सैटरडे और संडे को करते हैं। क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आप लोगों ने याद रखना है, ये एक्रोनिम, ठीक है। और आप लोगों ने याद रखना है कि ये किस किस के लिए स्टैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। जब भी ये दो सेंटेंसेस को बेसिकली कंबाइन करने के लिए यूज हो रहे होंगे, आप लोगों ने इन कंजंक्शन से पहले यू हैव टू यूज अ कॉमा। लेकिन एक जो रूल है वो ये है कि यू हैव टू यूज द कॉमा व्हेन दे आर यूज्ड इन ऑर्डर टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए अगर हम देखें, अब यहाँ एंड की यूसेज हमने की, इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बट उससे पहले हमने कॉमा की यूसेज इसलिए नहीं की क्योंकि वहां नाउन्स हैं, वहां इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ द सेंटेंस इज आई woke up early in the morning and I went to pray prayer। अब मुझे ये बताएं, पेट में स्क्रीन आपको कर दूं बोर्ड, हाँ जी, मुझे आप लोग ये बताएं कि ये दो सेंटेंसेस हैं, क्या डिपेंडेंट है? आर दी सेंटेंसेस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हम यूज कर रहे हैं और हम आर वी यूजिंग एनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ओवर हियर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। सो उससे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि उससे पहले आप लोगों ने यूज करना है कॉमा, उसके बाद नहीं, उससे पहले, ठीक है। और सेंटेंसेस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जाम्पल बट की यूसेज कर लेते हैं। ही वॉज नॉट फीलिंग गुड but he
submitted his assignment। हाँ जी, अब मुझे बताएं हम कॉमा की यूसेज कहाँ करेंगे। सारे बताएंगे क्लास, हरी अब। ठीक हो गया जी, बट से पहले वी वुड बी यूजिंग अ कॉमा। ठीक है, एक और सेंटेंस कर लेते हैं इसी रूल का। यू कैन सिट और यू कैन वॉक। हाँ जी क्लास, ठीक है, बिफोर और। इनको हम कहते हैं क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और तब हम यूज करेंगे जब ये दो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, मतलब दो सेंटेंसेस जो खुद, मतलब कि खुद अपनी मीनिंग जो है बेसिकली वो आपको डिलीवर करें खुद, वो इंडिपेंडेंट हो, वो दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या दूसरे फ्रेजेस पर वो डिपेंड नहीं करें, और जो जो आपको कंप्लीट मीनिंग बेसिकली देते हैं। These types of sentences are called as independent clauses। समझ आ गई क्लास यहां तक? एनी क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, दो तीन यूसेजेस क्लास और है, हम जल्दी से उनको भी कवर करने की ट्राई करते हैं। क्लास जब आप बेसिकली दो, इफ यू आर यूजिंग टू और मोर देन टू एडजेक्टिव्स इन एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, फॉर एग्जांपल यस रिपोर्टेड स्पीच में भी होते हैं यूज। फॉर एग्जांपल, अली इज एन इंटेलिजेंट, ब्रेव एंड पंचुअल स्टूडेंट। अब मुझे बताएं हम कॉमा की यूसेज कहाँ करेंगे। अब दीज आर नॉट योर नाउन्स, दीज आर योर एडजेक्टिव्स बेसिकली। ठीक हो गया क्लास? सो यहां हम यूज करेंगे कॉमा की यूसेज। ठीक है, सो क्लास आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी को कहीं भी समझ नहीं आई हो, प्लीज लेट मी नो एंड आस्क मी। ब्रेव 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 नहीं, ब्रेव के बाद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो नहीं है ना, ये तो आपके पास दो एडजेक्टिव्स हैं, या अगर दो नाउन्स भी होते तभी हम यूज ना करते, दो एडवर्ब्स होते तभी हम यूज ना करते, जब तक ये आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन नहीं करेंगे एंड यहाँ यूज नहीं, कॉमा यहाँ यूज नहीं होगा। ठीक है क्लास, लेट मी चूज द ब्राइट माइंड ऑफ द डे। जैसी क्लास एंड हो मुझे आप लोग स्क्रीनशॉट्स काइंडली शेयर कर लेना। अबीहा एंड Sabiha and Halima are the bright minds of the day. No, MCQs would be carried by us in the next classes to come. Okay, Arfa, Abiha. Okay, let me write the names of the students. Please take the screenshot. The one who is taking the screenshot and then share it with me. ठीक है, I'm not going for full names class. Plus, you people can leave the class because you people are having next class. Take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz.